Hello everybody, I am Dr. Gaurav Saxena sir, and today we will discuss a very important and interesting concept of science, that is blood grouping in humans. तो जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो एक यूनिवर्सल ट्रेट है, यानी हर इंडिविजुअल जब पैदा होता है तो उसके साथ कोई ना कोई एक ब्लड ग्रुप के साथ ही वो पैदा होता है, और ये एक जेनेटिक ट्रेट है और एक परमानेंट ट्रेट है। यानी जिस ब्लड ग्रुप के साथ कोई चाइल्ड जन्म लेगा वही ब्लड ग्रुप उसका थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन रहता है। और ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं जेनेटिक ट्रेट है, इसका मतलब है यानी जो मदर और फादर का ब्लड ग्रुप है उसी पर ही बच्चों का ब्लड ग्रुप बेस्ड होता है। सो इन ह्यूमंस फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर फाउंड प्रेजेंट। In humans, four types of blood groups are found present. This is blood group A, blood group B, blood group AB, and blood group O. And these four types of blood groups were discovered by a scientist, Karl Landsteiner, in the year 1901. So, Karl Landsteiner is known as the father of blood grouping. Mr. Karl Landsteiner discovered these four type of blood groups in humans in the year 1901. So, he is known as the father of blood grouping. In humans, there are two types of blood groupings are found present. So they are known as, number first, the ABO blood group system, or you can say ABO blood grouping, ABO blood group system. And the second one is known as the RH system. We will discuss these two systems one by one in detail. As you know that in these bloods, whether it is A, B, AB and O, different type of substances are also found present. They are called as the antigens as well as and the second one is antibodies. So what are antigens and what are antibodies? Antigens are the substances or the molecules which are present on the surface of red blood cells of the blood. This is a red blood cell and various types of antigens are present. This is the surface of red blood cell. For example, this is an antigen present on its surface. Let it be an antigen A. Antigens are basically the protein molecules, or they may be of carbohydrate in nature. They are oligosaccharides also. While the antibodies are dissolved in the blood. Okay, antibodies are dissolved in the blood and it is dissolved in the plasma part of blood. Antibodies are mainly the protein molecules, or you can say the proteinaceous molecules. So they are made up of proteins, and these antibodies provides protection, or they rise your immunity. They enable us to fight against the infections. These antibodies helps an individual to fight against the infections, and they play an important role in protecting us from various diseases and microbes. ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं ये पर्सन टू पर्सन डिफर करते हैं। किसी में ए ब्लड ग्रुप हो सकता है, किसी पर्सन में, किसी में बी, किसी में ए बी या किसी में ओ। अब ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं ये डिटरमाइंड होते हैं ऑन द टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट, यानी कि कौन सा ब्लड ग्रुप है वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार की एंटीजन प्रेजेंट है। तो एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम बोल देते हैं एंटीजन ए, एंटीजन बी। इसको हम कैपिटल से डिनोट कर देते हैं। और एंटीबॉडीज भी दो प्रकार के होते हैं, इसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट कर देते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है, अब ये चार प्रकार के ब्लड ग्रुप्स में कौन कौन से एंटीजन प्रेजेंट हैं ये हमको समझना है। तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल और चार्ट दे रहा हूं, उससे ये बात सारी क्लियर हो जाएगी कि कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन और कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रिपेयरिंग अ टेबल which shows
the four type of blood groups and the type of antigens and antibodies present in them. बेटा ध्यान रखना है, जो एंटीजेंस हैं दे आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल के सरफेस पे ये पाए जाते हैं, उसकी सतह पर लगे होते हैं। और जो एंटीबॉडीज हैं वो प्लाज्मा में या ब्लड में डिसॉल्व होते हैं। ओके, तो ब्लड ग्रुप चार तरह का है, ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप। ओके, अब जो ब्लड ग्रुप ए है इसमें ए एंटीजन ही पाया जाता है, जिसको हम कैपिटल से शो करते हैं। ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन पाया जाता है, ठीक है। और ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों प्रकार के एंटीजन, ए एंड बी बोथ, दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। और जो ब्लड ग्रुप ओ है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, लिख दीजिए नन या निल। ना, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है मगर एंटीबॉडी इसका उल्टा होगा, यानी कि बी। यहां एंटीबॉडी बी होता है, स्मॉल बी से हम उसको सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है और एंटीबॉडी होता है इसमें ए, स्मॉल ए से उसको हम सिंबलाइज करते हैं। और जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसमें एंटीजन तो दोनों प्रेजेंट है मगर एंटीबॉडी कोई भी प्रेजेंट नहीं है। और जो ओ ब्लड ग्रुप है इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता मगर इसमें दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं, ए एंड बी बोथ, ठीक है। तो ये टेबुलर चार्ट से ध्यान रखना है, ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए है तो एंटीबॉडीज की अपोजिट बी वाली होगी। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी अपोजिट यानी ए होगा। ए बी में दोनों प्रकार के एंटीजन है, कोई एंटीबॉडी नहीं है। ओ में कोई भी एंटीजन नहीं है और दोनों तरह की एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। तो बेटा ये ए बी ओ ब्लड सिस्टम है, इसमें डिफरेंट एंटीजन और एंटीबॉडीज आपने समझे। एंटीबॉडीज प्रोटीन से मिलकर बनते हैं और ये जो ए और बी एंटीजन है बेसिकली कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनते हैं और उस कार्बोहाइड्रेट को ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एंटीजन हैं दे आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और ये जो एंटीबॉडीज हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि ये इनका कंपोजिशन प्रोटीन्स का है और ये कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनते हैं। और वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है उसका नाम है ओलिगोसैकेराइड्स, OLIGOSACCHARIDES। तो ये बात ध्यान रखना है, यानी ए बी एंटीजन कार्बोहाइड्रेट और ओलिगोसैकेराइड से मिलकर बनते हैं और ये जो एंटीबॉडीज है ये प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आपके साथ जो सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम है जिसको बोलते हैं आरएच ब्लड सिस्टम और द आरएच सिस्टम। Now we will discuss the RH system. Okay. तो ये RH सिस्टम क्या है? एक मंकी है जिसका नाम है रीसस मंकी। रीसस मंकी जब उसके ब्लड की टेस्टिंग की साइंटिस्ट ने तो उसके भी आरबीसी के सरफेस पर एक एंटीजन मिला। आपको पता है द एंटीजन्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो क्योंकि ये रीसस मंकी में मिला तो उसका हमने आरएच ले लिया और इसको बोला गया आरएच फैक्टर और द आरएच एंटीजन। और बेसिकली ये जो आरएच एंटीजन है ये इसका कंपोजिशन है प्रोटीन से मिलकर बना। ये बात ध्यान रखिए। ए और बी एंटीजन जो पहले पढ़े हमने एबीओ सिस्टम में वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनते हैं और ये जो आरएच एंटीजन है वो प्रोटीन से मिलकर बनता है। अब इसी एंटीजन को फिर कुछ ह्यूमंस में भी टेस्टिंग किया गया तो जो कंक्लूजन निकला कि बहुत सारे ह्यूमंस में ये वाला आरएच एंटीजन उनके आरबीसी के सरफेस पे पाया गया और कुछ ह्यूमंस में नहीं मिला। तो जिनमें ये आरएच एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे पाया गया उनको बोला गया आरएच पॉजिटिव और जिनमें ये एब्सेंट था ये वाला आरएच एंटीजन उनको बोला गया आरएच नेगेटिव।
RH मतलब यानी कि उन ह्यूमंस के ब्लड में ये फैक्टर प्रेजेंट है तो दे आर RH पॉजिटिव, और जिनके ब्लड आरबीसी के सरफेस पर ये एंटीजन नहीं है दे आर कॉल्ड एज RH नेगेटिव। ओके, नाउ आई विल डिस्कस हाउ द ब्लड ग्रुप्स कैन बी क्लासिफाइड एज पॉजिटिव और द नेगेटिव। इसमें ध्यान ये रखना है, पॉजिटिव मतलब ए पॉजिटिव मैंने बोला, फॉर एग्जांपल समझिए, दिस इज द ब्लड, दिस इज द आरबीसी। ओके, इस पर ए एंटीजन लगा हुआ है इसकी सरफेस पे, ये आरबीसी है और ये इसकी सरफेस है। ए एंटीजन लगा है और यहाँ पर ये दूसरा एंटीजन भी लगा है जिसको हम बोल देते हैं आरएच एंटीजन, जो कि मंकी में, रीसस मंकी में प्रेजेंट था। तो इस ब्लड ग्रुप को हम बोलेंगे ए आरएच पॉजिटिव, या आरएच को हम हटा के सीधे बोल देते हैं और ए पॉजिटिव। क्लियर है? तो जिस पर्सन के का ब्लड ग्रुप ए है और उसकी सरफेस पे ए एंटीजन भी है और आरएच एंटीजन भी है तो उसको हम बोलेंगे ए पॉजिटिव या ए आरएच पॉजिटिव। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है मगर ये आरएच फैक्टर नहीं है, ये वाला एंटीजन उसके आरबीसी की सरफेस पे नहीं है, तो उसको बोला जाएगा आरएच नेगेटिव या ए नेगेटिव। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये ए एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे लगा है और यहाँ कोई आरएच एंटीजन नहीं है, तो ये वाला जो ब्लड ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे ए आरएच नेगेटिव या ए नेगेटिव। ओके, नाउ वी विल गिव यू सम मोर एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये आरबीसी है और यहाँ पर इसके सरफेस पे बी एंटीजन लगा है, तो आपको पता है बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन प्रेजेंट होता है और यहाँ सरफेस पे आरएच एंटीजन भी लगा है, तो उसको हम बोल देंगे बी आरएच पॉजिटिव या बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोल देंगे। एक और एग्जांपल, ये बी एंटीजन लगा है आरबीसी की सरफेस पे और यहाँ कोई आरएच एंटीजन अटैच नहीं है, तो ये वाला ब्लड ग्रुप हो जाएगा आपका बी नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट, ऐसे भी समझ सकते हैं हम, अब यहां आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन भी लगा है और ये दूसरा बी एंटीजन भी लगा हुआ है, तो बेटा ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया? ए बी ब्लड ग्रुप होगा। अब क्योंकि ए बी में दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको टेबल में बताया है, तो ये ए बी ब्लड ग्रुप हो गया और साथ में ये आरबीसी की सरफेस पे आरएच भी अटैच है, तो ये वाला ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। ए बी आरएच पॉजिटिव ना कहकर हम इसको बोल देंगे ए बी पॉजिटिव। फर्दर समझिए, ये ए एंटीजन अटैच्ड है और ये दूसरा बी एंटीजन अटैच है, मगर यहाँ कोई आरएच एंटीजन नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे ए बी नेगेटिव। एक बात ध्यान रखना है, वर्ल्ड में लगभग 80 से 85% जो पीपल हैं उनमें ये आरएच एंटीजन पाया जाता है, वो आरएच पॉजिटिव होते हैं। 80 से लेके 85% तक जो पीपल्स हैं दे आर आरएच पॉजिटिव, यानी कि उनके आरबीसी की सरफेस पे आरएच एंटीजन भी पाया जाता है, और लगभग 15 से 20% लोग ऐसे हैं जिनके आरबीसी की सरफेस पे ये आरएच एंटीजन नहीं होता, तो वो आरएच नेगेटिव होते हैं। तो जो नेगेटिव आरएच एंटीजन है वो एक रेयर ट्रेट है। नेक्स्ट, अब यहां देखो ये भी एक ब्लड ग्रुप है, आरबीसी है, यहां कोई भी एंटीजन नहीं है, ना ए एंटीजन है ना बी है, तो ध्यान रखो बच्चे कि जब कोई भी एंटीजन नहीं होता है तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है? वो ओ ब्लड ग्रुप होता है, यानी ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। अब यहाँ एक आरएच एंटीजन इसकी सरफेस पे लगा हुआ है, तो ये वाला ब्लड ग्रुप बन जाएगा ओ पॉजिटिव, और यहाँ कोई भी एंटीजन नहीं है और आरएच एंटीजन भी यहाँ अटैच नहीं है, तो ये हो जाएगा ओ नेगेटिव। So dear all, today we have discussed the two types of blood grouping system, that is the ABO blood system and the RF system in detail. मुझे उम्मीद है ये आज हमने जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम आपको रोचक तरीके से बताया है ये आप सभी को समझ में आया होगा। So it's time to like and share my videos and subscribe my YouTube channel Transforming Education by Dr. Gaurav Saxena sir to get one of the best videos on the scientific concepts. Thanks for watching the video.